السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں آج پھر سے ایک بہت زبردست آڈیو لے کر آیا ہوں۔ اس آڈیو کے اندر دیوبند کے دو مولوی کو بھاگتے ہوئے دیکھیں گے۔ دونوں کی بولتی بند کر دی اور آخر میں فون کاٹ کے بھاگے۔ اور سبھی حضرات سے گزارش ہے ہمارے دونوں چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے آڈیو کو پہنچائے۔ آپ کی محنت سے اگر ایک کی بھی ایمان کی حفاظت ہوئی اور گمراہی سے بچ گیا تو اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے نامۂ اعمال میں لکھے گا۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے ہمارے دونوں چینل کے لنک کو واٹس ایپ پہ تمام گروپوں میں شیئر کرے اور پرسنل میں اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کرے اور اپنے دوست اپنے رشتہ داروں کے ایمان عقائد حفاظت کرنے کی کوشش کرے۔ ایک چینل کا نام ہے ترجمان اہل سنت، جس کے اندر تقریباً 40 ویڈیو ہے، بہت بہترین اچھے ویڈیو آپ کو سننے کو دیکھنے کو ملے گا۔ فیضان مجاہد ملت، اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں، اور ترجمان اہل سنت اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کی جان مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ کہاں سے بول رہے؟ میں آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں۔ آپ تبلیغ جماعت کے ساتھی ہیں کیا؟ جی جی جی۔ اچھا جناب، ایک تبلیغ جماعت کے بارے میں ایک بات پوچھنے کے لیے میں نے شاید کال کیا تھا آپ کو، آپ اٹھائی نہیں۔ تو یہ جو تبلیغ جماعت میں دو گٹوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، مولانا سعد اور مولانا یہ احمد لاٹ صاحب شورا والوں کا جو جھگڑا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش کے اجتماع میں 5 آدمی مر گئے، قتل ہو گئے 5 آدمی کا، دونوں آپس کی دو جماعت میں بہت لڑائی ہوئی۔ تو آپ لوگ جب مسجد میں کوئی جماعت آتی ہے تو کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ اس جماعت کے لوگ ہیں، یہ اس جماعت کے لوگ ہیں؟ حلیہ تو سب کا ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو مجھے پہلے بولیے آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ مجھے یہ آپ کے بارے میں اتنا جاننا ہے، میں بریلوی ہوں الحمدللہ، اور جماعت کے بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ میں وہ ساری باتیں آپ کو مجھے بولنے دیا ہے تو میں بولوں۔ آپ کو شروع میں پوچھا، آپ نے تو سوال کا جواب نہیں دیا، تو میں پورا مکمل 2-3 منٹ میں میری بات رکھوں گا، پھر اس کے بعد آپ بولیے گا کہ کیا ہے۔ تو انگریز نے کچھ علماء کو پیسہ دے کر کچھ علماء سے کتابیں لکھوائے، جن کتابوں میں بہت ساری غلط باتیں ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑنے لگے، تو ان باتوں کا خلاف ایک عالم دین کھڑا ہوئے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں، ہمارے پرانے بزرگان دین کی باتیں یہ سب نہیں ہے، یہ سب اسلام کے خلاف عقیدہ ہے، ان سب عقیدہ کفری عقیدہ ہے، ان کے خلاف ہم لوگ ان کے خلاف ایک جٹ ہونا چاہیے اور ہم مسلمان اپنے بزرگان دین کے راستے پر چلنا چاہیے۔ مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ان تمام دیوبند کے عقائد کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دیا، جس وجہ سے علماء دیوبند کے کفر سے بچ کر مسلمان ایک جٹ ہو کر اہل سنت متحدہ طور پر مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے طور طریقہ پر ان کے عقائد و نظریات پر چلنے لگے۔ سنو اب آپ کی بات میں سن رہا ہوں، تو علماء دیوبند کی کیا غلطی ہے کہ تم ان کو دیوبندی بول کر مطلب ابھی بولے نا علماء دیوبند کے خلاف چلنا؟ جی، علماء دیوبند نے جن باتوں کو سنیے، آپ نے سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا۔ علماء دیوبند نے ایک کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، پیج نمبر 122، اس کے اندر لکھا ہے معاذ اللہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بات بالکل کفریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد پورے کائنات میں ہر مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ بات دیوبند کا غلط ہے، دیوبند کی ان باتوں کو مت مانو، ایسا لکھنے والا کافر ہے، اس کو عالم دین بھی مت سمجھو، وہ بالکل اسلام کا دشمن ہے، انگریزوں کے کہنے پر لکھا گیا۔ دیوبند کو ماننے والا ڈائریکٹ کافر ہے۔ تو یہ بات ماننے والا آپ بتائیے، شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، ایسی بات ماننے والا کیا ہے؟ آپ ہی بتائیے، میں کوئی کہوں گا نہیں، آپ خود بتائیے۔ جو شخص ایسا کہے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، میں آپ کو عبارت بھیجتا ہوں واٹس ایپ کھول کر۔ حضرت مولانا صاحب، میرا واٹس ایپ چالو ہے، مجھے یہ بتائیے شیطان نے کس کو درس دیا ہے؟
جی शैतान ने किसको पढ़ाया है? शैतान ने हाँ, शैतान ने किसको पढ़ाया है वो तो आप जानते हैं। नहीं आप बोल रहे हैं ना, तो जब तुम बोल रहे हैं कि कोई शख्स मानता है कि शैतान को अल्लाह के नबी से ज्यादा इल्म था, हाँ ये बात बरोबर आप यही बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो किसी जी, नबी ने फरिश्तों को पढ़ाया है, ये बात है कहीं पर लिखी हुई? नबी ने फरिश्तों को पढ़ाया नहीं और शैतान ने फरिश्तों को पढ़ाया, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, तो शैतान ने पढ़ाया है, पढ़ाया बोलकर कहीं आप साबित कर बरोबर? सकते हैं? जी बताइए, आप मुझे बताइए कि किसी आलिम दीन ने ये कहा है, तो वो साबित करके बता सकते हैं आप? शैतान ने फरिश्तों को पढ़ाया बोलकर आप जो कह रहे हैं यह कहीं सबूत है? है, सुनिए अकाबिरीन से सुनिए, बड़ी बड़ी किताबों में जाकर देखिए आप। कहीं भी तो बुखारी नहीं है पढ़ी है, ये बात, मुस्लिम तो शरीफ आज पढ़ी, तक मैंने किसी हाँ, किताब में नहीं अबू पढ़ा दाऊद कि शरीफ पढ़ी है, शैतान ने तिरमिजी फरिश्तों शरीफ को पढ़ी पढ़ाया है। था। यह मैंने मुझे भेजा हूँ, बताइए, देखिए। आपने अबू दाऊद शरीफ पढ़ी है, मुस्लिम शरीफ पढ़ी है, तिरमिजी शरीफ पढ़ी है, मुस्लिम शरीफ पढ़ी है क्या? बुखारी तो शरीफ पढ़ी है आपने? बिल्कुल पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़े उसमें, जरा सुनाइए। आप कौन सी हदीस, किस चैप्टर में कौन सी चीज सुनना चाहते हैं? आप मुझे ये बताइए ना। बुखारी शरीफ की हदीस आप बताऊं? बोल रहे हैं, चलो चलो ये उलमा का ये जाने दो, मुझे ये बताइए, आप जो बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपने जो बात रखी है कि उलमाए देवबंद को जो भी मानेगा तो काफिर है, इसके बारे में बताइए, कैसा काफिर है? तो उलमाए देवबंद ने 4 बातें पहले मैं बताऊंगा, जिन चारों बातों की वजह से उलमाए देवबंद को हम काफिर मानते हैं। सबसे पहला, अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है कि नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को है, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी की गुस्ताखी है, इस वजह से काफिर अशरफ अली थानवी। और कौन रशीद सी अहमद किताब में लिखा गंगोही। है उन्होंने? मौलाना 4 अशरफ बातें, अली थानवी ने? आप चार पहले बात कंप्लीट करो, फिर आपको 4 मिनट बोलने दिया जाएगा। नहीं, मैं टोकूंगा बीच में, मैं किस नहीं, बात पे बीच में टोक रहा हूँ कि आप कौन जब सी बात किताब पे मुकम्मल लिखा है नहीं आप? होगी ना, इस तरह की अगर रात रोकेंगे, हर बात के बीच में टोकेंगे, कोई बात मुकम्मल नहीं होगी, रात भर हमारी बात खत्म नहीं होगी। बात ये तरीका ये है, जैसा मैं 3 मिनट बोलूं, 2-3 मिनट, उसके अंदर आप गलतियां निशानदेही करके रखे, फिर आप जब 3 मिनट बोलेंगे हमारी गलतियों की निशानदेही आप 3 मिनट में करेंगे, और मैं 3 मिनट मुकम्मल बात रखूंगा। मेरी आधी बात में टोकेंगे तो मैं क्या कहना चाह रहा था वो भी मुकम्मल नहीं होगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। बात करने का उसूल ये है, सामने वाले की बात मुकम्मल हो और फिर आप भी मुकम्मल बात रखें। मैं कोई बदतमीजी बदजुबानी नहीं करूंगा, आपको प्यार से बात करूंगा, सिर्फ मुझे समझना है। मेरी गलत फहमी जो है, मैं जो समझ रहा था आपकी किताबों से वही मैं बयान करूंगा। इसमें अगर मैं गलत हूं तो आप मेरी गलती को आप मुकम्मल बयान करें अपनी बारी में, ठीक है? बीच में ना टोके प्लीज। हाँ हाँ, हाँ मैं भैया। 4 बातें अर्ज करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, अशरफ अली थानवी ने कहा नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को है, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये इनके किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान, पेज नंबर 15। मैं एक इबारत आपको भेजा, बाकी इबारत भी अभी भेजूंगा, आप पहले मेरी गुफ्तगू मुकम्मल सुने। अशरफ अली थानवी की इस वजह से कुफर आयद होती है। और दूसरी बात, रशीद अहमद गंगोही ने जो लिखा है आपको भेजा हूँ, इसमें लिखा हुआ शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, यह भी बिल्कुल कुफरिया बात है, नबी की गुस्ताखी है। तीसरी बात, इन्हें लिखा है कासिम नानूतुबी साहब, कासिम आप नानूतुबी ने मेरी बात लिखा सुनिए है, एक मिनट, आप नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज बहुत कट करा रही है। कासिम नानूतुबी साहब ने लिखा है कि नबी के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन समझना, हुजूर आखिर में तशरीफ लाएंगे, हुजूर आखिर में तशरीफ लाए, ऐसा अकीदा रखना सिर्फ आवाम का ख्याल है, हकीकत इसके बरखिलाफ है। ये बात कासिम नानूतुबी साहब ने लिखा है। और यह भी लिखा है कि बिल फर्ज बाद ज़माना नबी कोई नया नबी पैदा हो फिर भी खातिमियत में कुछ फर्क नहीं आएगा, और उम्मती नबी से मुमताज होते हैं, उलूम ही में मुमताज होते हैं, बाकी रहा अमल उसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती नबी से बराबर होते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं। नबी से बढ़ने की बात हुई, उम्मत को नबी से बढ़ने की, हालांकि आप अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी आगे नहीं बढ़ सकते, किसी सहाबी से भी आगे नहीं बढ़ सकते, जो एक नजर नबी को देखा उसके आगे भी नहीं बढ़ सकते आप। ये अहले सुन्नत का अकीदा है।
تو ان چاروں گفتگو کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کروڑوں پیدا ہو جائے گا، یہ کتاب میں تقویت الایمان میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان بزرگان دین، تمہارے دیوبند کے جتنے بزرگ، جتنے اسلاف ہیں، جتنے اکابر ہیں، یہ سب کے کفری عقیدہ کی وجہ سے ان کو ہم کافر مانتے ہیں، اور جو ان کو ولی مانے، جو ان کو اکابر مانے، وہ بھی کافر ہوتے ہیں۔ یہ ہماری یہ دعویٰ ہے۔ اب آپ اپنی بات رکھیے۔ مجھے بتائیے کہ آپ نے جو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کروڑوں بھی پیدا ہو جائے، دنیا کے اندر آ جائے، تو اس سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ یہ کتاب کا عبارت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، پہلے آپ کو بھیجتا ہوں، پھر میں پڑھ کے مراد آپ کو خود واضح ہو جائے گا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کتاب کا یہ تقویت الایمان ہے، تقویت الایمان کتاب کی عبارت ہے، اور حفظ الایمان کا بھی میں بھیج دیتا ہوں، اور تحذیر الناس کا بھی عبارت بھیج دیتا ہوں۔ چاروں پہلے عبارت بھیج دیتا ہوں، پھر اس عبارت پر میں آپ کو دعویٰ کیا ہے، ان کا کیا مراد ہے۔ خدا تعالیٰ کی شان تو یہ ہے، ایک حکم کن سے کروڑوں نبی ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیدا کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، کروڑوں محمد کو اللہ تعالیٰ حکم کن سے پیدا کر ڈالے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے۔ آپ بتائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کروڑوں ہو جائیں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ نبی ہوں گے تبھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے۔ عام انسان تو نبی جیسے نہیں ہو سکتے۔ عام انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کروڑوں ہونا ابھی ممکن ہے، تو اس کا مطلب ہے نبی ہونا ممکن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی ہونا ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ سے جھوٹ ناممکن ہے۔ تو اب اگر کوئی دوسرا نبی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیدا ہو جائے، تو اللہ کی بات جھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی ہو جائے گی، اور یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت وہی ہے جو ممکنات میں سے ہے، ممکنات کو ہی قدرت ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف کوئی قدرت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ماننا ہے، کیونکہ اللہ عیب سے پاک ہے، عیب اللہ کے لیے ناممکن ہے۔ یہ جو عبارت لاسٹ میں بھیجا ہوں مولانا صاحب، یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ محمد صغیر صاحب، کہاں سے، کون سے مدرسے سے فارغ ہیں آپ؟ وہ یہ چھوڑیے، پہلے آپ کا جو سوال ہے نا وہ بولیے پہلے۔ ہاں، میں پہلے یہ عبارت میں آپ کو جو بھیجا ہوں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس عبارت کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس شہنشاہ خدا بند قدوس کی تو شان یہ ہے کہ اگر چاہے تو لفظ کن سے کروڑوں نبی ولی جین فرشتے جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر آن میں پیدا کر دے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیدا ہونا ابھی ممکن ہے، پیدا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اگر ممکن ہے تو پھر یہ قرآن جھوٹا ہونا بھی ممکن ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو قرآن یہ جھوٹی ہونا ممکن ہے، قرآن جھوٹا ہونا ممکن ہے معاذ اللہ۔ تو اس وجہ سے دیوبند کے عقائد کفریہ ہیں، اور ان کفری عقیدہ کو جو مانے، اور ایسے کفری عقیدہ رکھنے والے علماء کو جو ولی مانے، ان کو رحمت اللہ علیہ کہے، تو وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ نامزد آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بولیے۔ تو آپ کی بات، آپ سنیے میری بات، بولیے آپ بریلوی ہے بروبر؟ جی ہاں جی تو مجھے بتائیے، بریلی میں کون سی امام کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے؟ جی بریلی کے اندر مدارس میں کون سے امام کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے؟ قرآن و حدیث پڑھائے جاتے ہیں، قرآن اور حدیث، اور حدیث کون کے سی حدیث شروحات، کتاب؟
जो अहले सुन्नत के हैसियत से हदीस की पढ़ाए किताबें जाते हैं। बताइए मुझे, जी, हदीस की किताबों का नाम तो बताइए ना, हदीस की किताबों का नाम तो बताइए। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा। तो देवबंद में कौन सी किताब पढ़ाई जाती? देवबंद में क्या पढ़ाए जाते हैं वो देवबंद वाले जानते हैं। आपने कभी तहकीक की है वहाँ पे जाके? मैंने ये सब देवबंद की किताबें जब पढ़ी, जो आपको भेज रहा हूँ, ये किताबें मैंने पढ़ी। इसके अंदर जो अकायद कुफरिया है, और ये किताबें इसके ये अगर देवबंद जो की किताबें मफहूम। नहीं है, देवबंद का लक़ब तो दिया गया होगा उस पे, दारुल देवबंद का। हाँ, हाँ तो मुझे बताइए, हदीस की किताबें पढ़ा रहे हैं कि वहाँ पे क्या हिंदी की किताब पढ़ा रहे हैं देवबंद में? वहाँ पे तो हदीस की किताब पढ़ाई जा रही है ना, अबू दाऊद शरीफ पढ़ाई जा रही है, बुखारी शरीफ पढ़ाई जा तो रही है, अबू दाऊद शरीफ, बुखारी मुस्लिम शरीफ शरीफ पढ़ाई पढ़ाते जा रही है। हैं, तो अबू दाऊद शरीफ, बुखारी शरीफ से ये जो बातें देवबंद की किताब में ही लिखी हुई हैं, अगर मैं दूसरे की किताब पेश कर रहा हूं तो बोलिए मैं झूठा हूं। और अगर मैं देवबंद की किताबें मैंने आपके सामने पेश किया, तो देवबंद के उलमा तो बुखारी, मुझे अबू बताइए, दाऊद पढ़कर यही मुझे अकीदा ये सीखे बताइए, हैं कि शैतान का इल्म नबी से सुनिए ज्यादा बात है, पहले, शैतान ने आप मेरी फरिश्तों बात को पूरी पढ़ाया सुन है। रहे नहीं, आप तो आपकी बात पहले रख रहे हैं मेरे सामने, मेरी बात जी सुनिए पहले। हाँ, तो मुझे बताइए, अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को सजदा करना ये क्या है? अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को सिजदा करना हराम है। तो मुझे बताइए, दरगाहों में जाकर जो अपने करते हैं, सजदा करते हैं, ये मस्तूरात को कब्रिस्तान में ले जाकर वहाँ पर बेया है, तो ये क्या है? तो ये कौन लेके जाते, उसको पकड़िए। हमारे उलमा तो इससे, हमारे उलमा का फतवा हराम, हराम होने का फतवा, जैसा आपने पूछा मैंने फौरन हराम होने का फतवा दिया। इसी तरह हमारे हर आलिम से पूछिए, वो हराम कहेंगे। तो आलिम का काम तो, हाँ? आलिम का काम सिर्फ बोलना है, तलवार तो नहीं है तलवार से आपको रोके। आप भी अपनी औरत को अगर लेके जा रहे दरगाह में, मेरा काम है बोलना, भाई हराम है मत लेके जाओ, और सिजदा करना हराम है, तवाफ करना हराम है। ये सब मैं फतवा दे सकता हूँ, मैं बयान कर सकता हूँ। मेरे हाथ में बंदूक या तलवार तो नहीं है। हमारे हर आलिम, एक आलिम का फतवा दिखाइए जो जायज कहता हो। तो अवाम के फतवा क्या हमारे उलमा पर थोपेंगे? अवाम की गलती हमारे उलमा पर थोपेंगे क्या? उलमा का काम बताना है। तो आप जो बता रहे हैं आप कौन से बोले भले मदद पे अवाम फारिग की, है जनाब? आप जो गलतियां बताए वो अवाम की गलती, और मैं जो गलतियां बताया वो आपके बड़े, सबसे बड़े उलमा की। तो जब आलिम है गलती किया और अकायद में गलतियां किया तो काफिर है। और भोले भाले अवाम, अनपढ़ आदमी, उसने जो भी जहालत की बुनियाद पे किया वो हराम कारी किया है। हराम कारी करने वाला गुनाहगार है, फासिक है। और फासिक काफिर नहीं है, फासिक फासिक होता है, तो मेरी इस्लाम बात से खारिज सुनिए, नहीं होता। जो जो उलमा जो इस दुनिया से गए ना, जाओ उनकी कब्र खोद दो और उनको निकाल के बाहर निकाल दो कब्र में से। कब्र खोदने की भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जैसा आप जिंदा है, आपको तो मैं आप बोल रहे कैसे बुरे फिर उनके रास्ते से, बारे में कि कुफरिया है? तो फिर सुनिए, मुझे कुफरी ये अकीदा बताइए, क्या आपको मैं उनके नहीं मानने बता वाला सकता। कुफर है? आप अगर कुफर की हाँ? तरफ आप जा रहे हो, आप जा रहे हो तो मेरा काम क्या है? या फिर समझो मैं जा रहा हूं गलत रास्ते पर, आपका फर्ज क्या है? आप जाके मेरे बाप दादा के तो मैं कब्र इसका खोदोगे मतलब या मेरी, मुझे गलती से मैं बचाओगे? मैं हनफी मसलक को मान रहा हूँ, मैं हनफी मसलक से हूँ, तो आप मुझे भी गलत बोलेंगे डायरेक्ट? आप बरेलवी है तो? नहीं, हाँ, बरेलवी सच्चे हनफी है। हनफी होने के लिए पहले ईमान वाला। आप अगर शाफी होते ये सब तो क्या मैं हनफी आपको काफिर नहीं, कहता? बरेली सच्चे हनफी सुनिए है, ना, बरेली आप हनफी, हनफी है। हनफी नहीं, आप शाफी होते तो क्या मैं आपको गलत कहता या काफिर कहता? नहीं, शाफी भी सही है, हनफी भी सही है, लेकिन अकीदा दुरुस्त होने के बाद हनफी या शाफी, मालिकी, हम्बली, चारों मसलक सही है। आप हनफी कहने से क्या फर्क पड़ता है? आप हनफी होने, एक मिनट, अगर एक मिनट शाफी भी सुनिए। हैं, अरे देखिए आप एक मिनट हनफी रुकिए, मैं नहीं आपकी बात शाफी सुन है, रहा हूँ, कम मैं मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल आप शाफी है, तो मैं क्या आपको गलत कहूं? नहीं कहूंगा। मौलाना साहब, हाँ बोलिए बोलिए। आपके नाम मैं भूल जाता हूँ, क्या नाम है बोले तो समझ में नहीं। मेरा नाम सगीर है यार। अच्छा, सगीर भाई, सगीर भाई। तो सगीर भाई ये बताइए, आप हनफी है शाफी है, उसका सवाल नहीं है। मैंने जो सवाल किया, उलमाए तो देवबंद के अरे भाई अकीदा मेरी बात कुफरिया सुन है। पहले, तो तू मेरी बात सुन पहले। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है पे, तुम ला रहे मेरे को। दिमाग खराब क्यों मुझे हो रहा है? बताइए, आप, तुम मैं बरेलवी आप से कह के बोल पक्के रहा हैं? हूँ सगीर भाई, आप मुझे तू तराक से बात कर रहे हैं। तुम आप कैसे अगर बोल रहे हो आप डायरेक्ट? गलत तुम रास्ते पर है, मैं उलमाए आपको देवबंद गलती को से मानने रोक वाले रहा बोले, तुम हूँ, डायरेक्ट बोले और काफिर आप हो। मेरे मुझे कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। कब्र में वो जहन्नम में गए, उनको छोड़ दीजिए, आप खुद जन्नत के रास्ते पर आ जाइए ना।
जिन लोगों ने मौलाना कुफर किया सलमान है आजरी कौन है? उनको आप अकाबिर मानने पर मौलाना तुले हुए सलमान हैं, आजरी कौन है? और हम कह रहे हैं वो अकाबिर आपके अकाबिर नहीं हो सकते, वो गलत रास्ते पर गए हैं। वो तुम्हारे को कैसे अंग्रेजों से मालूम हो गलत पैसा रास्ते पे खाकर गए? मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, मुसलमानों का ईमान खराब करने की किताबें लिखे हैं। तुझे मालूम है कि उन्होंने ईमान खराब करने की किताबें तो लिखी ये है? किताबें साले क्या अब है, मेरा मुझे दिमाग पढ़ के खराब किया सुनाइए। तू। ये जो इबारत मैंने आपको भेजा हूँ, मुझे एक इबारत समझा दीजिए। चलिए, आप पढ़े लिखे हैं ना, उम्र आप कितनी मुझे है भाई समझा तेरी? दीजिए। चलिए, मैं गलत रास्ते पर, मैं गलत समझ रहा हूँ ना, आप सही समझा दीजिए मुझे। भाई अल्लाह वो गलत और मोहम्मद मत सल्लल्लाहु लिख अलैहि कुछ वसल्लम भी, कैसे तो मैं करोड़ों काफिर पैदा हो कर गया क्या? सकता है? हाँ, मुमकिन है। अरे भाई, तो फिर मैं हनफी मसलक का मानने वाला हूँ, मैं काफिर हो गया? मैं देवबंद हनफी उलमा का मानने वाला हूँ, मैं देवबंदी काफिर है हो गया? आप, हनफी होना। अभी हनफी कब काबिल आपका हनफी माना जाएगा? जब आपकी अकीदा सही हो। हनफी शाफी मसाइल में है, अकायद में नहीं। मसाइल के एतबार से आप हनफी हो सकते हैं, शाफी हो सकते हैं। हनफी लोग इसका आहिस्ता मतलब आमीन आप कहते पक्के हैं, शाफी मुसलमान लोग हैं? जोर से आमीन कहेंगे। वो कोई बुराई नहीं। पहले आप सही मुझे ये अकीदा बता भाई, बना लें, आप अकीदा पक्के आपका दुरुस्त मुसलमान हैं? हो जाए। मुझे बताइए, आप पक्के मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो अकीदा, जो गलतियां आपको मैंने दिखाया अभी, वो गलतियों से हम दूर हाँ, हैं, इसलिए हम पक्के मुसलमान। और हमारी कोई गलती हमारे उलमा की किताब से दिखा दे, मैं उसे तौबा करने के लिए तैयार हूँ। ये फजूल बात करने के लिए मेरे पास फजूल बात टाइम अभी नहीं जो है। मैं तुम गलत, इधर से मैं बदले अगर निकाल गलत रहे, बात सुनिए कहा मेरी तो बात बोलिए पहले। आप। फजूल बात, मैं जो अकीदे की बात करा तो फजूल बात हुई, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने हाँ, अकीदे इसके की बात, बाद मैंने कहा क्या है अकीदा यार, मेरे दुरुस्त, को बता रहे हैं अकीदा कि दुरुस्त फजूल होना। बात मेरे अच्छी सवाल का बात। जवाब दीजिए अरे सगीर अहमद अरे, भाई। तुम मेरी बात सुने नहीं यार, पच 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 कर लगा रहे, बीच में लगा रहा है यार तू भी। सुनाइए बात तो आप सुना करना पहले। आप सुनाइए। तुम पक्के मुसलमान है, बाकी जो दूसरे तो क्या काफिर हो गए पूरे? तो आप गलत रास्ते पर है तो मैं क्या बोलूं आपको? पक्के मैं बोल नहीं सकता ना। क्या कौन से एतबार से गलत रास्ते पे? ये थोड़ा मालूम है कि मैं कौन बोल सा रहा मसला है? हूँ कि आप गलत रास्ते पर हैं। देवबंद के उलमा को आप वली मानते हैं, और वो वली नहीं है। उन्होंने अल्लाह व रसूल के खिलाफ बातें लिखे, और अल्लाह के रसूल के खिलाफ बातें लिखने वाला वली नहीं हो सकते। तो आपकी गलतियां अरे जो भाई, तू जब गलत। मुताला कर रहा ना, तू इतना पढ़ रहा लिख रहा, सुन मेरी बात। आप मेरी बात सुना। इतना मुताला बिताला कर रहा है ना तू भाई, तो तू है ना किसी आलिम के पास जा। तुम आलिम के तो पास अभी जाके आप उसके पहले आप बोलना चाहिए रूबरू। आप आलिम नहीं है। बात सुन आप पहले अभी तो पूरी। खुद को मौलाना अभी बात डिक्लेयर सुन, करे। कितने बार आपको मैंने कहा मेरी आप बात भी सुन आप पूरी। किताब पढ़े हैं, मदरसा में पढ़े। आप शुरू में बोलना चाहिए कि आप पढ़े नहीं। और आप कासिम नानूतवी को रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं। आप जब बिना पढ़े बोल रहे हैं तो आपको जरूरी है ना तहकीक करना। किसी को गुनहगार कहने के रहमतुल्लाह लिए अलैह भी किसको तहकीक लगाते हैं, करना मुझे ये चाहिए। बता। किसी को आप सुन नेक मेरी बात पहले। कहने के लिए भी तहकीक जरूरी है। बात सुन पहले। बात सुन पहले आप। सुनाइए बात सुन आप पहले। सुनाइए। रहमतुल्लाह अलैह किसके लिए लगाया जाता? जो वली होता है उसको रहमतुल्लाह अलैह लगाया जाता है। क्यों किसी आलिम के लिए रहमतुल्लाह अलैह नहीं लगाते? तो आलिम वो वली होना चाहिए, वली के लिए ही रहमतुल्लाह अलैह लगाना चाहिए। जो जो वली नहीं है, आलिम भी नहीं है, ऐसे जो नबी के दुश्मन है, अल्लाह व रसूल के दुश्मन है, ऐसे के लिए तुम रहमतुल्लाह अलैह लगा रहे हो। जो नबी का गुस्ताख है वो रहमतुल्लाह अलैह हो सकता है? तेरा तेरा नाम क्या है, मैं तुझे बोला पहले। मेरा नाम जलालुद्दीन चिश्ती है। कहाँ से पढ़ा हुआ है भाई तू? बरेली शरीफ से। हाँ, बरेली शरीफ से। कहाँ पर है आपका मदरसा बरेली शरीफ? बरेली शरीफ में 6 मदरसे हैं बड़े बड़े। आला हजरत के सरपरस्ती में, आला हजरत वालों के सरपरस्ती में बड़े बड़े 6 मदरसे हैं बरेली शरीफ में। आला हजरत किसको बोल रहे हैं आप? आला हजरत किसको बोल रहे हैं? आला हजरत हम मौलाना अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह को बोलते हैं। कोई इसमें ये कोई मौलाना खराबी है? सलमान आजरी ये कौन है? जी सुन बात, अब मैं जो जो सवाल कर रहा हूँ, मैं अभी तक तुम्हारी बात सुन रहा था। आप 15 मिनट तक तुम बीच में कुछ बोलेंगे नहीं। अब बोलिए। बस तुमको मेरे सवाल के जवाब देना है। हाँ, मौलाना सलमान आजरी कौन है? हमारे बड़े आलिम हैं। आपके बड़े आलिम, जी बरोबर। जी। और वो एक है, आपके इधर के एक मौलाना है, बहुत चिल्ला चिल्ला कर बात करते हो कि दरगाह को जाना ऐसा है, दरगाह को जाना वैसा है। वो आपके मौलाना है ना? वो भी कौन, नाम तो बताइए।
नाम आप तो क्या याद नहीं है बोलना मेरे को चाहते उनको, हैं वो? जाड़े सर के देखो है, पहले जुब्बा उब्बा सलमान अजारी पहनते हैं। साहब है ना, उनके बारे में ही बोलो, एक 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 करके फाइनल करो ना। सलमान रुको, अजारी मुझे साहब की क्या उनके गलती बारे है में बोलो। कोई नहीं, उनकी गलती नहीं बता रहा हूँ। तो आप बोले ना हमारे कितने अच्छे आलिम का नाम लिया है सलमान अजारी साहब, उनके उनको फॉलो करो बस तो काफी सुनिए है। मेरी बात सुनना यार, पहले मैंने क्या बोला तो वो बात पे चलना यार पहले। तो बोलो ना, आपकी बोलो पढ़ाई कहाँ तक हो गई? जी। पढ़ाई कौन सी कहाँ तक पढ़े आप? आलिम बने या हाफिज बने थे? मैं आलिम भी हूँ, हाफिज भी हूँ अच्छा, जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। हाँ तो आप बताइए ना, आप तो क्या वो जो हैदराबाद सलमान के, अजारी साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे पहले बात तो सुनना पहले। मैं वो जो हैदराबाद का मौलाना जो बोलता ना, कौन है हैदराबाद का मौलाना, नाम तो बताइए। एक मिनट में मैं वो सुनाता हूँ, बयान बहुत सारे हैं उसके। हम्म। बताइए बताइए, नाम बताइए और उनकी क्या गलतियां हैं, क्या क्या गलत बोला उन्होंने वो भी बताइए। आप सलमान अजारी साहब का नाम लिए हैं, सलमान अजारी साहब हमारे हैं और अच्छे आलिम हैं, मैंने उनकी तारीफ की, और अगर उनकी भी कोई गलती होगी। अल्लामा अहमद नक्शबंदी, हाँ, अहमद अल्लामा नक्शबंदी। अहमद नक्शबंदी। वो क्या कहना, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम्म, ये मौलाना है ना इतना बड़ा? नहीं, उनको ना हम मौलाना कहते हैं, ना अच्छे कहते हैं, ना बुरे कहते हैं। उनका हमारे ज़्यादा हम मुझे मेरे पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं उसको पसंद नहीं करता। और उसको कौन पसंद करता है, कौन उनकी तकरीर सुनता है, उनसे पूछ लीजिएगा। उनकी कोई गलती हो तो बताइए, अगर गलत होगा तो मैं बोलूँगा ये गलत बोला, और अच्छा होगा तो अच्छा बोलूँगा। और जो सलमान अजारी साहब की बात किया आपने, सलमान अजारी साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ, और सलमान अजारी साहब की हर बात बिल्कुल मैं उनकी बात का सपोर्ट करता हूँ। तो अभी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? गौस के पाक के पास जब कबर में सवाल पूछने को आए थे, इसके ऊपर एक बयान है इनका। हम्म। हाँ, तो कुछ बहुत सारी बातें, तो मुझे बताइए क्या फरिश्तों जाके अल्लाह तबारक ताला के पास जाके पूछे थे क्या गौस के पाक के बारे में? अच्छा, ये बात पहले अशरफ अली थानवी ने किताब में लिखा है, पसंदीदा वाकयात। तो पहले अगर अहमद नक्शबंदी गलत है, तो सबसे पहले अशरफ अली थानवी भी गलत है। अशरफ अली थानवी की किताब में लिखा हुआ है, एक गौसे पाक का धोबी था, मरने के बाद जब फरिश्ते उसके कब्र में आकर सवाल पूछे कि मन कौन रब्बु सी का, किताब में लिखा हुआ है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है? ये मुझे पूरा किताब पसंदीदा का बताइए। वाकयात, किताब का नाम किसकी है किताब है? पसंदीदा वाकयात। किसकी किताब है? ये अशरफ अली थानवी, आप नाम जानते हैं अशरफ अली थानवी कौन है, जानते हैं? हाँ, मालूम नहीं। हाँ, वो उन्होंने पहले मुझे लिखा बताइए, है। सफा नंबर तो क्या है? पहले आप, अहमद नक्शबंदी की गलती है, तो सबसे पहले गलती अशरफ अली थानवी की है। थानवी ने पहले लिखा और उस बात को अहमद नक्शबंदी ने बयान किया। तो बयान करने वाले बाद में, पहले अशरफ अली थानवी 100 साल पहले लिख चुका है, तो पहले उसको, अशरफ अली थानवी को गलत आप मान लीजिए, उसके बाद अशरफ अली थानवी के मैं, रास्ते से दूर हो जाइए। चलिए, आप देखो सलमान काम अजहरी साहब के धंधा बारे में लेना, कुछ सुन कहना बात है आप तो मेरी कहिए। पूरी। आप तो मेरी बात सुन आप। देखो काम धंधा लेना तो उलमा किस्म से उलझा हुआ है। पहले जाके खुद का दिमाग सही कर, मेरे को बाद में हमारा फोन दिमाग कर बिगड़ा कौन हुआ सा कहाँ है, आलिम गलत है। बताइए जरा। कोई गलत बात हो तो मैं अभी अभी दिमाग सही कर लूंगा। मैं मैं अपने अरे चुप। मैं अपनी गलती का इस्लाह कर तो बड़े लूंगा। अकाबिरीन के बारे में निकाल रहा है कुछ भी, साले जमीन खोर, कुछ भी निकाल रहा है बड़े अकाबिरीन के बारे में। तेरे को कुछ बड़े अकाबिर लुच्चे क्या आता है, है ना, जरा एक दो उनको किताब बड़े पढ़ना है साले। अकाबिर तो रख, साबित कीजिए। आप तो अंधभक्त हैं। अरे रख बहुत फोन, तौबा रख भोसड़ी के अस्तगफिरुल्लाह, फोन ला साले। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तबलीग जमात में जाके यही सीख कर आया है गाली देना। अभी देखिए, तब से आरे तू तरह से बात कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। और ये जमात में जाने के बाद ऐसे दरिंदे होते हैं, ऐसे ही दरिंदे होते हैं। ये सिर्फ गाली गलौज, बदतमीजी, यही इनको सिखाया जाता है। इल्म नाम की कोई चीज ये नहीं इनके बरेलवी पास। साले पूरे नापाक है। ये इल्म बरेलवी नाम की साले कोई चीज तुम नहीं है। जैसे और कीड़े। जमात में, अभी मैं जमात के बारे में सवाल पूछा कि इज्तिमा में 5 आदमी मर गए आपस में लड़के, ऐसे खतरनाक जमात में हमको ले जाके इसे खतरनाक आदमी बनाया जाता है।
جو عالم کی عزت کرنا نہیں جانتا، کتنے ادب سے بات کرے تو بھی گالی عالم گلوچ ہے کر تو رہا ہے۔ میں ابھی ارے بھی تیرے آپ کہہ اندر کے بول اخلاق ہے رہا کیا ہوں، پہلے؟ ابھی گالی دے رہا ہے۔ یہ اپنے اکابرین کی ارے تو کتابوں میں عالم ہے نا؟ غلطیاں ہیں، اس غلطی کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ غلطی کے باوجود ان کو ارے ولی کہہ وہ رہا ہے، تیرے کو رحمت معلوم اللہ ہے نا، علیہ تیرے کہہ کو رہا ہے، اور ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کو گالی دے رہا ہے۔ یہی صلاح ہے کیا؟ ہماری اچھائی کا یہی بدلہ ہے؟ آپ خود بتائیے ارے جناب کبھی صغیر تو احمد تو صاحب، میرے کو کچھ بولا نہیں آپ نہیں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ پہلے میری بات سنا تو، اب میری بات اللہ کو سنا کیا تو۔ منہ دکھاؤ گے؟ جو غلط، جو ارے کفر میں لکھ کے بڑے گئے، ادھر جہنم میں جو جا دے، کافر مگر تھا تیرے ویسے جیسے کو نالائق اکابر کیڑوں مانتے کو ہے ہو، نا، میں اور ہماری رک بغیر تیرے غلطی اوپر کے ایف ہم آئی آر گالی درج دیتے کرتا ہو۔ ہوں، رک تیرے اوپر ایف آئی آر درج کرتا ہوں، تو کیا ایف آئی آر گل کرو، چلا رہا ہے کہ رک۔ ایسے میرے پاس بہت ایف آئی آر میرے جیب میں پڑا ہوا رہتا ہے ہمیشہ۔ ایف آئی آر کی کاپی کیا میرے پاس 25-30 پڑا ہوا ہے۔ ہاں، تو تم اور ایک ایف آئی آر کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہارے اوپر میں ایف آئی آر کروں گا اور تم پھنس جاؤ گے، کیونکہ تم نے گالی دیا، میں نے گالی نہیں دیا۔ میں نے ابھی تک ایک گالی رک بھی بیٹا، نہیں دیا، تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی سے بات بھی نہیں کیا۔ اب تم کال کٹ کر کے بھاگو گے کیونکہ تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تمہارے پاس کیا، تمہارے بڑے مفتی مولوی کے پاس بھی جواب نہیں ہے۔ تم تبلیغ جماعت والے گمراہ ہو، بے دین ہو، اور تمہارے اکابر، تمہارے علماء کافر ہے۔ اس وجہ سے تم کو اسلام سے کوئی تیری لینا ماں کا دینا نہیں بھوسڑا ہے۔ تیری سالے۔ تم کو اپنے علماء سے محبت ہے، اللہ و رسول سے محبت نہیں ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں نا شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے۔ تم خود مان رہے ہو، تم خود مان رہے ہو ارے شیطان نے بریلی فرشتوں کو کھلے ہے نا، پڑھایا۔ مجھے لگتا ہے دیوبند کے سارے مولویوں کو شیطان نہیں پڑھایا ہے، شیطان نہیں پڑھایا ہے، اور تبلیغ تیری جماعت ماں کے کا شیطان سالے نہیں پڑھایا کتے ہے۔ کے پلے، رک اب تو میری بات سنا پوری۔ ارے سناؤ، رک میری بات سنا تو سالے، اب سنائیے۔ بہت دیر سے بک بک کر رہا تو۔ ہاں، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ مولانا الیاس پکا کافر تھا۔ اس نے جو کہا ہے، اس نے کہا تیری کہ نئی بہن کی قوم چپ پیدا تیری کرنی سالے، ہے، نئی قوم پیدا کرنی ہے، مسلمانوں کو نئی توڑ قوم کر اس نے پیدا نیا کرنی ہے۔ فرقہ بنایا، نئی قوم پیدا کیا، جس کی وجہ سے مسلمان آج بھی لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے انگریز نے پیسہ دے کر اس جماعت کو کھڑا کیا، اور یہ تبلیغ جماعت اپنے عقیدہ نہیں بتاتا، تو نماز روزے کی بہانے سے پکا دلال ہے مسلمانوں تو، کو کافر دلال بناتا ہے ہے، تو سالے، دیوبندی بناتا پکا ہے۔ دلال ہے، مسلمانوں کا دلال ہے تو۔ پھر یہاں نہیں، میں تیری مسلمانوں باتیں کا دلال تو میں قیامت ہوں کے دن میدان الحمدللہ، محشر میں پکڑ کروں گا۔ مسلمانوں کو اللہ و رسول کی طرف لے جانے کا میں دلال ہوں، اور تم انگریزوں کا دلال ہو، تم یہودیوں کے ہاں دلال ہو، میں مسلمانوں کا دلال ہوں۔ صحیح بولا تم نے، میں ہاں مسلمانوں میں کا دلال ہے، دلال چل ہوں، میں میں دلال ہے، کیا کر مسلمانوں سکتا کو ہے؟ اچھی ماں تیری، جنت کے تیری راستے ماں پر کا لے تیری جانے کا سالے، میں دلال ہوں، سن، رک اور تم انگریزوں کا رک دلال ہو۔ تیری ماں کا تیری، سن پہلے اب میری بات۔ ارے رکھ تیری، تیری رکھ توبہ توبہ، استغفر اللہ کتے کے پلے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رکھ تم کون تیری جماعت ماں کا یہ تیری، آج بہن کی دو، بیٹیوں کو اس طرح گندی رکھ گالیاں دے میری کے بہن کی جماعت میں چپ تیری، جانا، فون تم رکھ۔ نے جماعت میں جا کے یہی سیکھے ہو، تبلیغ جماعت میں جا کے، ہاں، گندی گندی گالیاں دینا۔ توبہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اب میرے بھائی یہ بتاؤ، جماعت میں جانے والے کتنے غلیظ، کتنے گندے ہوتے ہیں؟ یہ کسی بھی لحاظ سے اسلامی اخلاق، کریکٹر ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک فرقے کو بڑھاوا دینے کے لیے جماعت کا کام کر رہا ہے۔ اللہ و رسول کا ان کے پاس ڈر و خوف اور اللہ و رسول کی محبت ان کے پاس ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ ان کو پورے 40 دن 4 مہینہ اپنے مولویوں کا نام، ان کی جھوٹی تعریفیں رٹایا جاتا ہے، ان کے مولویوں کی جھوٹی کرامتیں بیان کی جاتی ہے، اور اللہ و رسول کے خلاف بغض اور دشمنی ان کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ جماعت میں 4 مہینہ جا کے آنے کے بعد یہ اپنے مسجدوں میں اس طرح گندگی پھیلاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، نبی کو غائب کا علم نہیں تھا، نبی کچھ نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ، نبی اپنے بیٹی کو نہیں بچا سکتے، نبی مدد نہیں کر سکتے، امت کی کوئی خبر نہیں، قیامت کے بارے میں ہمارے نبی نہیں جانتے تھے، نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی، نبی 40 سال سے پہلے، 40 سال ہونے سے پہلے نبی کو پتہ بھی نہیں تھا اللہ کون ہے، میں دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، ایمان کیا ہے، نبی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ سب باتیں کفری عقیدہ جماعت میں جا کے سیکھ کر آتا ہے۔ تبھی تو ان کے الیاس، جس خبیث کے نام لے کر اس نے کہا الیاس رحمت اللہ علیہ، معاذ اللہ لعنت اللہ علیہ ہے، اس خبیث نے یہ کہا کہ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ اور میں قسم سے کہتا ہوں، یہ تحریک صلاۃ نہیں، نماز سکھانے کی محنت نہیں ہے، کیونکہ اگر نماز سکھایا جاتا نا تو غلیظ اتنے گندے زبان نہیں ہوتے دیوبندیوں کے۔
تو اس خبیث کا نمبر بھی ڈال دیا ہوں. سبھی حضرات اس خبیث کی خبر لے. یہ جتنی بدتمیزی ہمارے ساتھ کیے ہیں، گالی گلوچ کیا ہے، یہ گالیوں کا جواب پبلک اس کو دے گا. اس کا نمبر بھی وائرل کر رہا ہوں. سامعین حضرات، ان دیوبندی شیطانوں کی شرارت سے، ان کے مکر و فریب سے، ان کے دھوکے بازی سے، ان کی کفری عقیدت سے آپ دور رہے اور ان خبیثوں پر اللہ کی لعنت بھیجے. اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کو عذاب میں مبتلا کرے. جیسا یہ اجتماع میں آدمی آپس میں کٹ کے مر رہے، آپس میں لڑ کے مر رہے، اسی طرح جماعت کا برا انجام ہوگا. 100 سال سے مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دیا، زبردستی مسجدوں کو قبضہ کیا، زبردستی ہمارے مدرسوں کو قبضہ کیا، ہمارے علماء کو تکلیفیں دی، ہمارے علماء کو اسی طرح ان خبیثوں نے گالی گلوچ کیا، بدتمیزی کیا اور ہمارے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کیا. آج ان پر عذاب آ رہا ہے. ہر جگہ تبلیغ والے آپس میں کٹ کے مر رہے ہیں اور یہ مرے گا، اسی طرح برباد ہو کے مرے گا. اسی طرح تبلیغ جماعت پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا ہے. ہر جگہ یہ بدنام ہو چکے ہیں اور خود ان کے علماء بھی ان سے ناراض ہیں. ان کے علماء بھی ان کے خلاف آج کل ان کے علماء بیان دے رہے ہیں. اب تبلیغ جماعت میں جانے سے سوائے بربادی کے اور کوئی نہیں ہونے والا. آپ جس بھی جماعت میں جاؤ گے، الیاس، اگر آپ جا رہے ہو مولوی سعد کی طرف سے تو شورا والے آپ کو پیٹ پیٹ کے آدمرا کر دیں گے، اور اگر شورا والوں کی طرف سے جا رہے ہو آپ کی ہڈی پسلی توڑ دیں گے. اس لیے آپ بھائی کس بھی جماعت سے جاؤ گے، حلیہ تو ایک جیسا ہی دکھے گا نا، اونچا پاجامہ، ٹکلو اور موچ منڈا ہوا سپا چٹ، اور اس طرح کی حلیہ، چھوٹے بھائی کا پاجامہ، بڑے بھائی کا کرتا، آپ کو دیکھ کر نا پہچان میں نہیں ہوگا. آپ کے ہی لوگ مولوی سعد کے چاہنے والے ہی سعد کے چاہنے والوں کو ماریں گے. یہ ایک دوسرے کو پہچانتے کیسے ہوں گے پھر جب لڑائی ہوتی ہوگی تو؟ وہ کیا ہے، ایک جماعت میں جیسا ہر ضلع کا مرکز ہوتا ہے نا، مرکز میں ایک لیٹر دیتا ہے. جیسا جماعت نکل رہی ہے، میں تو جماعت میں پہلے گیا نا 4 مہینہ، مجھے پتا ہے. میں جماعت میں گیا تھا بنگال میں، کھڑگپور میں جماعت میں گیا تھا، پھر دارجلنگ میں جماعت میں گیا تھا 2004 میں 2005 میں گیا تھا. کھڑگپور میں، دارجلنگ میں اور پھر کلکتہ کے بھی بہت سارے علاقے میں جماعت پھرے ہمارے. تو یہ جس ضلع میں جاتا ہے نا، پہلے ضلع کے مرکز میں جاتا ہے، جا کے مرکز کا جو مین ہیڈ ہوتا ہے اس کو ایک لیٹر دیتا ہے جہاں سے آیا ہے. مثال کے طور پر آپ جے پور سے احمد آباد جماعت میں آؤ گے تو جے پور کے مرکز سے جماعت بھیجنے کے وقت میں آپ کو لیٹر دے گا ایک، تو لیٹر میں ان کا مہر ہوتا ہے، تو وہ مہر جا کے احمد آباد کے مرکز میں آپ کو دکھانا پڑے گا. تو مرکز میں جب آپ لیٹر دکھاؤ گے تو مرکز والے آپ کو ٹھہرنے دیں گے، اور ٹھہرنے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ فلانا مرکز سے آئے ہیں. تو پہلے جو مہر وغیرہ تھا، اسٹمپ تھا، وہ اسٹمپ جو ہے ان لوگوں نے بانٹ لیا ہے. مولوی سعد والے الگ اسٹمپ بنا لیا اور شورا والے الگ اسٹمپ بنا لیا. آپ جب شورا والوں کی طرف سے اسٹمپ پیپر لے کے جاتے ہیں تو ان کا پتہ ہے کہ شورا والوں کے مرکز کہاں کہاں ہے. تو شورا والوں کے مرکز میں جب جائے گا تو کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ مرکز بھی ایک ہی مرکز دونوں گروپ میں بانٹ لیا ہے. ایک ہی مرکز دونوں گروپ نے بانٹ لیا ہے. جیسا یہ بنگلور کا مرکز ہے، بنگلور کا مرکز ہے، یا پھر کہیں اور جگہ کے مرکز بھی ہوں گے ایسا کہ 15 دن شورا والے سنبھالیں گے مرکز، اور 15 دن نظام الدین والے مرکز والے سنبھالیں گے. تو جب نظام الدین مرکز والے جب سنبھالتے ہیں تو نظام الدین مرکز کی طرف سے ساری جماعتیں الگ الگ جگہ پہ بھیجا جاتا ہے. جب اس جگہ پہ گئے جہاں شورا والوں کا قبضہ ہے تو نظام الدین مرکز والے سعد والوں کی طرف سے جو بھی جماعت آئے گی، جماعت کے بوری بستر پٹک کے مسجد کے باہر تالاب میں ڈال دے گا اور سب کو دوڑا دوڑا کے مارے گا. اب ان کے حلیہ دیکھ کے پہچاننے کا کوئی صورت نہیں ہے، صرف شخصیت سے پہچانے جائیں گے. مثال کے طور پر کوئی مولوی ہے، اس کو فیمس مولوی ہے، جانتے ہیں کہ یہ شورا والا ہے، تو پھر سعد والا اس کو پٹائی کریں گے.
پھر کوئی سعد والا جماعت ہے تو سعد والے جماعت کو پھر شورا والے پٹائی کریں گے. اچھا ہوا کہ یہ پٹائی کھانے سے پہلے ہی ہم بچ کے دیوبندیت سے توبہ کر کے بریلوی ہو گئے ہیں. یہ 712 کا تین بار کال آ رہا تھا جب بات ہو رہی تھی تب. اب یہ شورا والوں کی پٹائی کھانے سے پہلے ہم بچ کر آ گئے. بہت اچھا کیا نا. جی بالکل بالکل. ورنہ ہم کو بھی دوڑا دوڑا کے مارتے شورا والے. اب کیا کرنا ہے؟ اور کوئی دیوبندر ہے؟ کوئی دیوبندر ہے؟ ہاں نہیں، یہ 712 جس کا ہے لاسٹ میں، اس کا 2-3 بار آ گیا کال. اچھا چلو 712 والے کو کال لگاؤ. اچھا یہ کون مطلب کچھ یاد ہے آپ کو؟ مجھے تو اتنا یاد نہیں ہے 712 والا کون ہے. یہاں 712 والا وہی ہے ابھی جس سے بات ہوئی تھی. اچھا وہی ہے کیا؟ وہی ہے. پھر لگاؤ اٹھاؤ. ہاں وہی ہے. لگاؤں کیا دوبارہ؟ ہاں لگاؤ. اس کا بھی اچھا دوسروں کا بھی آ رہا تھا 3598. نہ پہلے اسی کو لگاؤ، 712 والے کو ہی لگاؤ. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہاں بولو. ہاں یہ لو ہمارے مولانا سے بات. ہاں مولانا سے بات کرا کے بہت اچھا کیا آپ نے. مولانا سے بات کرتے ہیں. ہاں لو بات کرو. ہاں شیخ مولانا افسر صاحب ان سے بات کیجیے. جلال الدین جلالی. اچھا السلام علیکم حضرت. والسلام علی من اتبع الہدی. آپ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی حضرت. اچھا یہ دیوبند کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، یہ صغیر بھائی کو میں نے بھیج دیا تو دیکھ لیجئے. ان کے موبائل میں ہے براہین قاطعہ پیج نمبر 122. اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہم کو بہت گالی گلوچ کیا. ہماری ماں بہن کی بھی گالیاں دی انہوں نے. ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہی، ہم نے صرف سوال پوچھا تھا. بتائیے مولانا صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ جی افسر خان. اچھا افسر خان صاحب. مولانا صاحب تو بتائیے مولانا صاحب یہ کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، پیج نمبر ہے 122. اس میں لکھا ہوا ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں. شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محض بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان کو یہ وسعت علمی نص قطعی سے ثابت ہوئی. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سے نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ حضرت آپ کہاں سے؟ میں آندھرا پردیش سے ہوں. آندھرا پردیش. کیا کرتے ہیں حضرت آپ؟ میں امامت کرتا ہوں. تو آپ کو یہ مولانا ملے کیسے؟ کیا مولانا صغیر کی اور آپ کی پہچان ہوئی کیسا؟ نہیں مولانا صغیر صاحب جو ہے مجھے میسج کر کے مجھے پوچھا کون ہو. پھر میں نے کہا کہ آپ کون ہو، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے کال کیا تو میں کال کر کے میں نے کہا کہ بھائی آپ مولانا ہے تو میرے سوال کا ذرا جواب دیجئے. تو پہلے تو اچھی طرح بات کیا، پھر میں نے جب سوال کیا تو بہت بھٹک گئے، غصہ ہو گئے اور گالی گلوچ کرنے لگے. اور یہ مولانا صغیر ہے، مولانا ہو کے بہن کی گندی گالیاں دیے. گالی دینا تو فاسق ہونے کی علامت ہے نا. گالی نہیں دینا چاہیے، اور اس وقت نہیں کہ مولانا آپ بھی جو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ نے ایک سوال کرا، آپ کے ذہن میں وہ سوال تھا، آپ نے اس سوال کو سامنے رکھا ہے نا. بہت اچھی بات ہے بھئی، آپ کے ذہن میں وہ چیز نہیں بیٹھ رہی. علماء نے کتابیں لکھے، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ اختلافات ہے، اور اختلافات چلتے رہے گے موت تک، قیامت تک کے اختلافات چلتے رہے گے ہر جگہ. حتیٰ کہ یہاں تک کے معاملہ ہے کہ سنی میں بھی اختلاف ہے، تبلیغی میں بھی اختلاف ہے.
जी देवबंद में भी इख्तिलाफ है, बरेली में भी इख्तिलाफ है, आपस के भी इख्तिलाफात है। और मसाइल के एतबार से बोलो, अकाइद के एतबार से बोलो, जहाँ अकाइद का मामला आता है तो बरेली हजरात के भी अकाइद वही है जो तबलीगी हजरात के अकाइद है। अकाइद के मामले में दोनों बराबर है। अब कतई नजर इसके कि कहाँ पर किसका क्या, किसने क्या लिखा, किसने क्या बोला और किसने क्या बात कही। और इस वक्त तबलीगी हजरात भी और बलीगी हजरात भी एक प्लेटफार्म पर आ गए। अकाइद का मामला अल्लाह की जात से जुड़ा हुआ है, जो भी फसाया फासिद अकाइद है, इसके वो उसके फासिद अकाइद है, ये है वो है, ये सारी चीजें इस वक्त इंडिया लेवल पर और बड़ी लेवल पर सारे बरेली हजरात और तबलीगी हजरात मिलकर चल रहे हैं। दोनों हजरात एक स्टेज पर रहकर अपने बयानात कर रहे, एक प्लेट में खा रहे, एक जगह पर रह रहे, सारी चीजें हो रही और इख्तिलाफात नीचे की वजह से मसाइल खड़े हो गए। अभी जो आपको जैसा मौलाना ने बोले या आपने मौलाना को बोले होंगे कि भाई बांग्लादेश में ऐसा मामला हुआ, जो भी हुआ सुने भी होंगे, आपने भी सुने होंगे, है ना। हाँ ये सारी चीजें आपने भी सुने होंगे, हमने भी देखे, हमने भी सुने, सारी चीजें है। ये इख्तिलाफात की वजह से इतना मामला खड़ा हुआ है। जी और अभी हम जिस जगह से बोल रहे हैं ना हजरत, आपको इस वजह से नहीं बोल रहे कि बस किसने क्या लिखा, उसके जवाब की वजह से भी नहीं बोल रहे। हम भी जिस जगह पर काम कर रहे हैं ना, यहाँ पर हमारे साथ पूरे बरेली हजरात एक प्लेटफार्म पर एक स्टेज पर रहकर बात करते और एक स्टेज पर इख्तिलाफात अपनी जगह पर है, उन्होंने अपना प्लेटफार्म संभालेंगे, हम अपना प्लेटफार्म संभालेंगे। और रहा मसला हजरत पकड़ का, तो पकड़ तो अल्लाह सबसे बेहतर जानता, बंदों से ज्यादा वसअत वाला अल्लाह है और उसकी पकड़ उसके नजदीक बहुत खतरनाक है। अब वो मामला उनका है। अब मौलाना के नाथ को आप लगे, मौलाना ने बोल दिए होंगे आपको, जो भी बोले होंगे वो इख्तिलाफात की बहस अपन, जी हजरत, इख्तिलाफात की बहस अपन किसी आप और कहाँ वक्त से में बोल रहे हैं आमने मौलाना सामने। साहब? हम बोल रहे हैं महाराष्ट्र अंबाजोगाई बीड़ जिला। अंबाजोगाई बीड़ जिला। मैं जी, करमला में जिला बीड़, रह चुका हूँ। करमला में कर्म कर्मड़ा। करमला में मैं रह चुका हूँ, 1.5 साल तकरीबन रहा मैं। जी जी जी, तो आप जो कह रहे हैं ना मौलाना साहब, अकायद जी दोनों जी के एक जैसे हैं। आपके जी मौलाना पीर जुल्फिकार नक्शबंदी साहब ने कहा कि बरेलवियों के साथ हमारा अकायद का इख्तिलाफ है और इल्म गायब बरेलवी लोग मानते हैं, हम इल्म गायब नहीं मानते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर नहीं मानते और बरेलवी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर मानते हैं। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को नहीं मानते और बरेलवी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात को मानते हैं। तो ये सब जी बातें पीर जुल्फिकार नक्शबंदी साहब ने खुद दावा किया, वीडियो में उनके बयानात में मौजूद है। तो आप जो कह रहे हैं जी ना अकायद में कोई इख्तिलाफ नहीं है, अकायद में ही हमारा आपका इख्तिलाफ है, बाकी मसाइल में ज्यादा इख्तिलाफ नहीं है। मसाइल में चंद इख्तिलाफात है। और जी आपने जो एक थाली में खा रहा है पी रहा है, हम उनको बरेलवी नहीं मानते। जो भी आप देवबंदियों के साथ खाना पीना उठना बैठना नमाज या स्टेज में बयान, सियासी तौर पर अगर कोई स्टेज में बयान हो रहा है जो हमारे मुश्तरका मसाइल हैं, जैसा वक्फ बोर्ड का मसला हुआ, जैसे मस्जिदें तोड़े जा रहे हैं, इस बारे में अगर कहीं सियासी तौर पर पॉलिटिकल मसला अलग है, पॉलिटिकल बारे में मैं कुछ नहीं कहता। पॉलिटिकल मसला नहीं कह रहा मैं, ये मसाइल भी जितने हैं ना हजरात, तो आपके हजरात सब इलाकों में चल रहे फिर रहे हैं, इधर वालों का चंदा चल रहा है, इधर वालों का पैसा उनको चल रहा है, हमारे पास चंदे के वास्ते सब बरेली हजरात आते जाते, ये सारी चीजें कर रहे। ठीक है, आपका मसला अकेले का व्यक्ति का अगर आपका मसला है तो वो आपकी जगह पर है ना, आप शिद्दत पसंद है तो उसको कुछ नहीं कर सकते। बाकी लोग अपने आप जो कह अपने रहे हैं एतबार से, ना मौलाना साहब, मैंने जी एक हैदराबाद में अक्सर मस्जिदों में ना फातिहा भी पढ़ते हैं। हालांकि देवबंद के इमाम, देवबंद के आलिम है, देवबंदी मदरसे से फारिग हैं, लेकिन फातिहा पढ़ लेते हैं। आवाम का प्रेशर है तो नमाज के बाद फातिहा पढ़ लेते हैं। तो ऐसे मस्जिद मैं समझ रहा था कि बरेलवियों की मस्जिद है, फातिहा खानी हो रही है, तो फिर मैं नमाज के बाद चंदे का ऐलान किया। मैं भी मदरसा चलाता हूँ, रमजान में मैं चंदा मदरसे के लिए चंदा करता हूँ। जब मैंने चंदे का ऐलान किया तो मस्जिद कमेटी वाले और मस्जिद के इमाम मेरे साथ बहुत बदतमीजी से पेश आए हैदराबाद में। आप जो कह रहे हैं बरेलवी हजरात कभी गलती से अगर देवबंदी को बरेलवी समझकर अगर चंदा करे तो भी बदतमीजी से पेश आते हैं। आप कह रहे हैं ना बरेलवी लोग चंदा करने, और हम जहां हमको कन्फर्म पता है कि ये देवबंदी मस्जिद है तो हम हरगिज चंदा करने जाते नहीं। और अगर कोई हुलिया बदल कर
हुलिया बदल कर अगर बरेलवी देवबंदी बनकर चंदा कर रहा है तो वो फ्रॉड कर रहा है। और हम भी मना करते हैं कि कोई भी बरेलवी देवबंदी मस्जिद में चंदा करने भी ना जाए, नमाज पढ़ने भी ना जाए, हम मना करते हैं। उसके बावजूद कोई जाता है तो उसकी गलती है। हाँ, पर वो अवामी सतह पर मसला है हजरत, वो अवाम जाने, उनका काम जाने। अब हाँ, आप लोग इसमें ज्यादा शिद्दत पसंद कर रहे हैं, शिद्दत बरत रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन सब जगह सबको समझ में आने वाली है, सारी चीजें अपनी जगह पर है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ वहाँ जिसका उसका अपने अपने फॉलोवर है, हर आदमी अपने अपने एतबार से काम कर रहा है, अपने स्टेज पर, अपने लेवल पर। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जायजा लो, चलो फिर आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ देवबंदी और कहाँ कहाँ नहीं है। देवबंदी हर मुल्क के कोने कोने गोशे गोशे में अल्हम्दुलिल्लाह, मसला उसका नहीं है। मसला कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो सबके मसाइल अलग है। हजरत मौलाना अहमद रजा साहब, जहाँ तक के आप जिनको आला हजरत मानते हैं, वो आला हजरत के भी इख्तिलाफात आप देखेंगे कि आला हजरत ने भी क्या क्या लिखा, क्या क्या नहीं, बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। और उसकी बहस दोनों मकातिब फिक्र के दोनों उलमा इकराम अपनी अपनी जगह पर बड़े बड़े पैमाने पर बहस मुबाहिसा चालू है, और उनके मुनाजरे हो रहे हैं, वो मुनाजरे में लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। आप अपन छोटे लोग इसके उसके मसाइल में पढ़ के अब उसको फोन लगा, ठीक है मौलाना ने गलती से आपको फोन लगा दिए होगे और मौलाना की आपकी बातचीत हो गई नहीं होगी। मौलाना साहब, आप जो कह रहे हैं ना, बड़े छोटे हर कोई दीन का जिम्मेदार है। जिसका जितना जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से वो दीन की हिफाजत की जिम्मेदार है, शरीयत की हिफाजत। बस आप माशाअल्लाह, बताइए, बहुत मैं अच्छी, एक बहुत एग्जांपल देता हूँ, सुनिए मौलाना साहब। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बनी इसराइल के उलमा के बारे में फरमाया। बनी इसराइल के मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिकुम वश्तरौ बिही समनन क़लीला। फरमाया कि ऐ उलमा, बनी इसराइल के उलमा और तमाम उलमा को, हम जैसे आप जैसे तमाम इस उम्मत के उलमा भी इसमें शामिल है, कि तुमको इल्म इस बुनियाद पे दिया जा रहा है, मिसाक उलमा से भी मिसाक लिया गया है कि तुम हक बोलोगे, हक को नहीं छुपाओगे। आप बनी इसराइल के उलमा ने हक को छुपाया, जिसकी वजह से उनकी शरीयत मिट गई। फिर नए शरीयत, दूसरे अंबिया नए शरीयत लेकर आए। अब ये आखिरी शरीयत है। इस शरीयत में अगर कोई इस शरीयत को रद्द बदल किया, इस शरीयत के अंदर कोई बदअकीदी की गुमराही अंदर घुसाया, तो उसका रद्द करने के लिए उलमा हर वक्त क़यामत तक उलमा हक मौजूद रहेंगे। हदीस पाक में है, ला यज़ालु मिन उम्मती ताइफ़तुन अलल हक़्क़ि ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम। हदीस में है कि इस उम्मत में एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी और दुश्मनों ने उस जमात का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब बात यह है कि आप अगर कोई बदअकीदी की गुमराही शरीयत के अंदर घुसाओगे, तो मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरे बड़े उलमा की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि बदअकीदगी को दूर करना। आप बताइए, कादियानी ने नबुवत का दावा किया और उलमा अगर उसका रद्द नहीं करते, आज सारी उम्मत फिर कादियानी हो जाता। तो रद्द करना भी जरूरी होता है। अगर कोई बदअकीदगी है, अगर आपके अंदर गुमराही है, तो खुलकर मुझे बयान करना जरूरी है। और अगर मेरे अंदर कोई बदअकीदी की गुमराही है, आपके लिए भी जरूरी है कि आप खुलकर मेरे खिलाफ बयान दे। और ये नहीं कहीं मेरा बड़े उलमा बोल रहे हैं मैं नहीं बोलूंगा, ये नहीं, आप पर भी जिम्मेदारी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हजरत, इसके लिए नहीं क्या मुबाहिसा बहस करने के लिए सामने सामने होना, फोनों पे बहस नहीं होती। नहीं, सामने होने के लिए देखिए, सामने भी हो रहा है। जहाँ सामने की जरूरत है, करमला शहर में मैं 1.5 साल रहा, वहाँ के देवबंदियों को मैंने 1.5 साल तक बोलता रहा, भाई हमारे बीच में जो झगड़ा है, तुम अपने मस्जिदों में हमारे खिलाफ बयान देते हो, तो हम भी आमने सामने, करमला जाके पूछिए, आपके वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सुनिए, आपके वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, करमला जाकर पूछिए। वहाँ के तबलीगी, बहुत सारे तबलीगी लोग भी मेरा सपोर्ट करते हैं, और उनको जाके पूछिए कि जलालुद्दीन, मेरा नाम जलालुद्दीन चिश्ती है, मौलाना जलालुद्दीन चिश्ती ने तुम्हारे सामने उलमा को बिठाने के, उलमा को आमने सामने बैठने के लिए कितने बार बोला? 4-5 बार चैलेंज करके भागे हैं, मेरे सामने बैठने को तैयार नहीं हुए। वहाँ का मुफ्ती सुल्तान है, मौलाना मोहसिन है, ये 2 मौलवी का मैं नाम जानता हूँ, और भी बहुत सारे वहाँ के उलमा है, मौलाना असलम है, और 5-6 उलमा करमला शहर में है, बड़े बड़े मौलवी, उनका मदरसा है, बड़ी मस्जिद का खतीब है, इमाम है, लेकिन मेरे सामने वो आए नहीं। आमने सामने बैठने की तो आप बात करते हैं, फोन पे भी बात करते नहीं, सामने भी नहीं बैठते।
अभी भी अगर मैं अम्बा जो गया आऊंगा तो हजरत जी, आपके उलमा सामने नहीं बैठेंगे। मौलाना जलालुद्दीन साहब चिश्ती, सुनिए बात, बोलिए। मेरी हजरत क्या बोल रहे हैं, आमने सामने बैठकर बात करेंगे। तो आप आंध्रा से आइए, हम इनके यहाँ से लेकर आते हैं, और आपके 4-5 अकाबरीन को लेके आइए, और हम 4-5 आते हैं। आप अपना इलाका चूज कीजिए, हम आपकी जगह पर आते हैं। आप एक बात कीजिए, सुनिए, करमला करमला आपके वहां से नजदीक है, मेरे यहाँ से दूर है। करमला शहर आपके वहां से नजदीक है। आपकी करीब वाली जगह बताइए। हेलो मौलाना सकीर साहब, छोड़ दो उनके नाक को, कहाँ लगे तुम? वो चलते रहता उनका, चलें दो उनको, उनके अपने तो चिश्ती साहब है वो बहरहाल हजरत, आप जैसा मुनासिब समझे चलते रहिए, आप बहस हाँ, करते रहिए, लेकिन चलने मैं दीजिए। सकीर साहब उम्मत के दरमियान का हाँ, पहले बिगाड़ अफसर खत्म कीजिए। मौलाना अफसर साहब, उम्मत को एक करने का, देखिए मेरा भी मंशा उम्मत को एक करने का ही है। अगर सही रास्ते सही को गलत को छोड़ देंगे तो उम्मत एक होंगे। आपने अपने रास्ते पर आप चलो, मेरे रास्ते पर मैं चलता हूँ, तो उम्मत कैसे एक होंगे? मौलाना अफसर साहब, ये सब बात एक होने के लिए क्या है? आपके अकाबिर ने अगर गलत लिखा है तो गलत को छोड़ दीजिए। सुनिए, पहले हजरत की बात सुनिए। पहले हम जिस मतलब से ताल्लुक रखने वाले हैं हजरत, हम जिस प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उस प्लेटफार्म का फख्र है। आप जिस प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं आपको उस प्लेटफार्म का फख्र है। दोनों अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम कर रहे हैं। जब तो फिर एक होने की बात आपने क्यों कहा? मोबाइल से चलते दोनों अपनी अपनी जगह पर करना है। हम कह रहे हैं कि दोनों बैठे अपने लेवल, दोनों की गलती कौन गलत है वो देखे, और उम्मत उससे दूर हो जाए, गलत को छोड़ दे, सही रास्ते पर आ जाए। इसलिए अल्लाह ने भी यहूद नसारा को ये कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, यहूद नसारा को ये नहीं कहा कि तुम अपने रास्ते पर रहो। यहूद नसारा को ये कहा अल्लाह ताला ने, ताला इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। जी जलालुद्दीन साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, मेरी बात सुनिए आप पहले। रहमतुल्लाह दामत बरकातुहू है वो, दामत रहमतुल्लाह बनाते, मेरी बात सुनिए पहले आप। हाँ, आपका काम क्या है? सिर्फ काम की दावत, हाँ आपके काम की दावत देना। हाँ हाँ, तो मौलाना सकीर साहब छोड़ दीजिए, मौलाना को सलाम करके रुखसत कीजिए, और फिर किसी नहीं, मैं तो सलाम का जवाब देवबंदियों का सलाम का जवाब मैं नहीं देता, क्योंकि आपके अकायद जो कुफरी अकायद है ना, उन अकायद से पहले तौबा करना पड़ेगा, तब हमारे सलाम का जवाब देंगे। सलाम का जवाब हम देंगे, बाकी बातचीत करेंगे, अच्छे अंदाज में बात करेंगे। बात करने में कोई मौलाना सकीर गाली मत दो उनको, जान दो। नहीं, सगीर साहब गाली देने में बहुत माहिर है, इल्म में कोई नहीं है उनको, इल्म कुछ नहीं आता, किताब कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ मदरसे में सगीर साहब बहुत गालियां सीखे हैं। सगीर साहब जो है ना, सबक सुनाने से पहले 100 गालियां याद कर लेते थे। मौलाना सगीर साहब ना सिर्फ गाली देना सीखे हैं, मदरसे में पढ़े नहीं, बेंच के एकदम लास्ट में पीछे बैठे रहते थे। मैं जानता हूँ सगीर साहब को। तो मेरी बात तो सुना तो पहले आप, मेरे हजरत तो सुन रहे थे आप। हजरत को मालूम होगा कि मेरे को गुस्सा चढ़ गया है। पहले बात सुनो, तेरा काम क्या है? दावत देना, तेरे इससे भी दावत तो पहले ईमान अकीदा दुरुस्त करके दावत देना है। पहले बात सुन, पहले आप पहले बात सुन, सुनो ना, पहले बात सुन आप तो। हाँ सुनाइए। मौलाना बरेल जी मौलाना सगीर साहब, ये हजरत बरेली हजरत है। अब ये उनका अपने जगह पर जो बोलना है, जो चीजें उन्हें अपने सामने रख रहे हैं, सारी चीजें उनकी जगह पर उनका अपना है, अपन अपनी जगह पर अपने एतबार से है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर अपने को फख्र है कि अपन जिस प्लेटफार्म पर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफार्म पर अपन पूरे आलमी सतह पर काम कर रहे हैं। हजरत के इख्तिलाफात करने से और हक और बातिल के क्या है, हक और क्या बातिल सबके सामने आया है और खुला हुआ है वाज़ेह तौर पर, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसमें मेहनत को सलाम करके दुआ की मेहनत करने जाके जो है आपस में लड़के मर रहे हैं ना, ये पहले ऐसे मेहनत हो रही है कि इज्तिमा में जाओ, आपस में एक दूसरे का सर फोड़ो, हड्डी पसली तोड़ दो, और ये मेहनत हो रही है। आप ये 100 साल का नतीजा है, और आप जो अपने प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हैं इसी का नतीजा है। तुम्हारे इलियास कांदलवी साहब ने कहा, इलियास कांदलवी साहब इसीलिए कहा है कि एक नई कौम पैदा करनी है, जो नई कौम ईमान अकीदत से आ रही है। मैं सुन लिया आपका, आप बहुत लंबी बोलते हैं, हमारा सुनते नहीं। आप जो हड्डी पसली तोड़ रहे हैं एक दूसरे का, ये मेहनत आपकी हो रही है। आप इसलिए आपके उलमा भी कहा कि ऐसी जमात में मत जाओ। अभी समझो आपके साथ मैं जमात में गया, मुझे क्या गारंटी है कि आपके दूसरे ग्रुप वाले हमको हड्डी पसली ना तोड़ दे?
हाँ बताइए। नहीं तोड़ेंगे हजरत, आप आइए नहीं इंशाल्लाह आप आपका बताइए ना, इस्तकबाल आपके करेंगे साथ हमारे। अभी हम आप शुरा वालों के साथ मुझे लेके ही जाएंगे, तो निजामुद्दीन हम्म। मरकज वाला जो है हड्डी पसली तोड़ेंगे जैसा बरेली बांग्लादेश में हजरत हुआ। भी आपस में लड़ रहे हैं हजरत, आपस में आपस बरेली में हजरत इतना ने भी अभी लड़ाई तो लड़े, कहीं भी नहीं है कुछ नहीं दुनिया में। पाए। और हुलिया आप निजामुद्दीन वाला या शुरा वाला पहचानेंगे कैसे, वो बताइए जरा। मैं आपके साथ जमात में जाऊंगा अभी, लेकिन मुझे ये बताइए कि शुरा वालों को कैसा पहचानूं, को मुझे आ रहा है अचानक हमला कर दें, और जिनकी शुरा लंबी वाले टोपी हजरत वो और शूरा निजामुद्दीन वाले। मरकज वाले कैसा एक दूसरे को पहचानेंगे, वो बताइए। ठीक है अच्छा। हाँ पहचान कैसे करेंगे शुरा वालों की और मरकज वालों की? लाजवाब हो गए। जवाब नहीं है इनके पास। हमको जमात में ले जाके मरवा देगा। हाँ, पब्लिक आवाम हम बोले किसी को जमात में चल करके, आम हम इंसान, बोल रहे इसलिए किसी हम जमात कहते हैं में भाई चल जमात करके। से दूर रहो। 100 साल से हम समझाते आ रहे हैं भाई ये खतरनाक जमात है, ये दुनिया में मुसलमानों को बर्बाद करने की जमात है। इनके अकीदा दुरुस्त नहीं है, कुफरिया अकीदा है, और ईमान सबसे ज्यादा कीमती है। ईमान बचाओ मेरे भाई, अल्लाह व रसूल के बारे में अच्छा अकीदा रखो। जिन बुजुर्गों की तरफ ये लोग ले जाते हैं उन तमाम बुजुर्गों का अकीदा कुफरिया है, ये पक्का काफिर व मुशरिक है। इनके अकायद दुरुस्त नहीं है, इनके अमाल दुरुस्त नहीं है, इनके बुजुर्गों की किताबें गंदगी से भरी पड़ी है। और ये जो अभी कहा है कि आला हजरत की किताबों में गलतियां हैं, एक गलती दिखाओ, एक गलती दिखाओ, चैलेंज करता हूं, तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। नहीं दिखा सकते तो मेरा नंबर आपके पास है, जब भी आपको कोई गलती दिखे मुझे कॉल कीजिए। हमारी गलती पर भी हम डिस्कस करना चाहते हैं। आप अगर हमारे गलती भी दिखाओगे उस पर हम बात करने को रेडी है। पब्लिक को गुमराह करना, ऑर्डर से झूठ पटे बोलना पर छोड़ निकल दो। कीजिए। हमारे आला हजरत के बारे में एक भी गलती तुम दिखा नहीं सकते, इसलिए हम आला हजरत मानते हैं। और तुम जो जिन बुजुर्गों को तुम आला हजरत अकाबिर कहते मानते रहो हो उनके कोई भी अकीदा सही नहीं है। भाई, मेरे अकीदे पे सही है तो तेरे अकीदे पे सही है। रख फटे पन्नी की जब मुट्ठी को तुम्हारे हवाई अकीदा, जाते तुम्हारे अकीदे पर तुम रह रहे हो, फिर एक होने की जो बात करते हो ना, हालात सही नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, ये ढंग रचाते क्यों हो? ये सारे मकरो फरेब क्यों करते वो हो? हम नहीं कर रहे। तो तुम्हारे सर मौलाना रुक रुक, मेरी जिन बात सुना। मौलाना को लाए थे, तुम्हारे मौलाना तो यही बात कह के गए, अकीदा सबका एक है। फिर तुम्हारे रास्ता अलग क्यों बना लिए तुमने? यही तुम्हारे मुनाफिकत है, मुनाफिकों की यही चाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुनाफिक भी ऐसे ही थे। तौबा करो, तौबा करो। सगीर अहमद साहब और मौलाना अफसर साहब दोनों तौबा कर लीजिए, सुन्नी बन जाइए, सहीहुल अकीदा बन जाइए, वरना ये मौलाना लंबी दाढ़ी जुब्बा कुब्बा कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है। फरिश्ते ये नहीं देखेगा तुम्हारी दाढ़ी कितनी लंबी है, फरिश्ते ये नहीं देखेगा तुम्हारे कपड़े कितना साफ सुथरा है। फरिश्ते ना अकीदा पूछ पूछ के मारेंगे, पिटाई करेंगे, कब्र में पिटाई शुरू हो जाएगी। इसलिए सही अकीदा अपनाओ, अकीदा दुरुस्त करो। नमाज रोज़ा बाद में, पहले अकीदा दुरुस्त करो। अल्लाह ताला इन देवबंदियों के शर से, देवबंदियों के फितने से तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमीन।